السلام علیکم ناظرین دو تین چیزوں پہ بات کرنی ہے۔ کل 17 جولائی الیکشن کا دن ہے پنجاب میں۔ 20 جو منحرف اراکین تھے ان کے حلقوں میں الیکشن ہونے، اور کچھ بات آج نئے رولز آئیں الیکشن کمیشن کا۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کہ اسی حلقے سے پولنگ ایجنٹ ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور دوسری بات، یہ پنجاب اور کے پی کو ملانے والا ڈیرہ دریا پل کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے داخلے پر، پنجاب کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پل کے دونوں سائیڈوں میں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں۔ آج تو کچھ یوں بھی نظر آیا کہ ایک پولیس والے نے لیڈی پہ ایک پستول تانا، اس کا بھی کچھ ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے آج کل، اور خاص کر پنجاب میں امن و امان کا نقصان ہو رہا ہے۔ امن و امان کو خراب کرنے کے لیے اول پولیس کا کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ وزیر داخلہ صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ اور میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوں کہ اس کو کیوں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہر جگہ یہ تکلیف ہو، ہر جگہ راستے بند ہو۔ آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ سارے راستے کھول دیتے، اگر کہیں بند بھی ہوتے تو ہر کسی کو دعوت دیتے کہ آئیں، ہم کیسے آزادانہ الیکشن کرا رہے ہیں۔ ادھر پولیس پارٹیاں، پی ٹی آئی کے امیدواران جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں، ان کے دفتروں پر چھاپے مار رہے ہیں اور ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ شبلی فراز صاحب نے آج ٹی وی پہ آ کے کہا کہ مجھے ادھر لودھرا میں یہ ساری چیزیں کرانے کے بعد مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے پی سے آئے ہوئے ہیں تو آپ کیوں آئے، اور خود پی ایم ایل این والے سارے حکومتی بجٹ کو استعمال کر رہے ہیں، کسی کو بجلی کے تاریں دے رہے ہیں، کسی کو کمبے دے رہے ہیں، کسی کو ٹرانسفارمر لگا کے دے رہے ہیں، یہاں تک کہ پیسے بانٹ رہے ہیں۔ نذیر چوہان لاہور سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اسی کا یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو وہ خود کسی کو پیسے دے رہے ہیں۔ یعنی یہاں تک کہ اس طریقے سے، اور الیکشن کمیشن بالکل کچھ بھی نہیں کہہ رہا، وہ اس کی طرف بالکل دیکھ بھی نہیں رہے۔ نذیر چوہان کی یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد باقی چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ویڈیو۔ جدو ٹیلنٹ چ بیٹ نہیں ہوں پھر الزام لگتے ہیں۔ مترو، یہ دنیا داری بڑی گندی چیز ہے۔ وہ کہتے نہیں ہوں جے برابری نہ ہو سکے تو بدنامی شروع کر دو۔ ناظرین، ایک تو منحرف رکن نذیر چوہان کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی۔ ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے دوسرے دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ یہ منحرف رکن تحریک انصاف سے ہے، اور عظما، یہ عظما کو آپ سنیں گے۔ آپ یہ ماہر قانون ایک راجہ عامر عباس صاحب، یہ سن لیجئے گا کہ یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ سنیں گے تو آپ دیکھ لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں کی عزت کیا رہی۔ کل ایک منحرف رکن نے خود بابنگ دول اعلان کر دیا کہ آپ لوگ ہمیں صاحب کہتے ہیں، لیکن جب میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ مجھے لوٹا لوٹا پکار رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں اور اس کو غور سے سن لیں کہ یہ عامر عباس صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔
ये मुनहरिफ रुकन। राजा साहब, over to you. अच्छा चलें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। तुमने ये बात की Please, Usman साहब, राजा साहब की बात क्या है? Ladies, both of you, please listen to एक us. दफा असेंबली में Please listen to the शुक्र gentleman. करो, शुक्राने के नफिल पढ़ो। जी राजा साहब, फरिया, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। आज से कोई 4 या 5 रोज पहले यही खातून का केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं भी वहां पे मौजूद था और चीफ जस्टिस का ये ऑब्जर्वेशन थी कि ये जो चेंज है, डिफेक्शन जो सी है, ये एक नासूर है। और मैं समझता हूं कि जो नासूर का वर्ड है वो लोटों से कहीं बड़ा है। ये कहें कि चीफ जस्टिस साहब ने ये बात नहीं की। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब ये वोट जोन सा है कि आपने जो भी किया है आपकी इसमें कुछ नहीं है, ये पार्टी ने आपको अमानत दी है, ये पार्टी का वोट है, आप डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं लड़ के आए। ये तमाम बातें रिकॉर्ड पे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इस तरीके से आपका कोई राइट नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये वोट आपके जमीर का वोट नहीं है, ये वोट आईने पाकिस्तान का है। और आईने पाकिस्तान कहता है कि इन 4 कंडीशंस में ये वोट पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का है। इट्स ए लॉ। नाज़रीन, ये है फवाद चौधरी साहब और ये कुछ तरतीब बता रहे हैं कि पीटीआई के मेंबरान और उनके अहदेदारान को कैसे पंजाब में तंग किया जा रहा है और उनको हिरासा किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और उनकी फैक्ट्रियों को कैसे बंद किया जा रहा है, या उनको हुक्म क्या होता है कि आप पीटीआई वालों के पास जाते हैं या उनको फंडिंग करते हैं या उनके साथ ताल्लुकात हैं तो आपने हमारे फ़लाने जलसे को कामयाब बनाना है और फ़लाने जलसे को आपने सारे लेबर वगैरह सारा स्टाफ इधर भिजवा देना है। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। दूसरा, वो इलेक्शन कमीशन का बता रहे हैं कि पोलिंग एजेंट दूसरी जगह से लेने का भी फ़ैसला उन्होंने किया था और वो भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया और उनको कहा कि नहीं, कहीं से भी इलेक्शन के लिए पोलिंग एजेंट मुकर्रर हों, उन पे कोई पाबंदी नहीं है, वो चाहे दूसरे हलके का हो चाहे उसी हलके का हो। बहरहाल इसी को अब देखें और इसको ये पूरी वीडियो सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। काउंसलर का इलेक्शन कम अज कम लड़वा दे, जो उसको बहुत शौक है अगर सियासत का, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने बयान दे दिया। इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ में जाम रजब जो थे वो यासर जतोई के साथ, उन्होंने यूनियन काउंसिल नाज़िम थे, चेयरमैन थे, उन्होंने यूं ही यासर जतोई की हमायत का ऐलान किया, उसको पकड़ के जो है वो अंदर कर दिया। मुल्तान में जो अब ARY ने कल चलाया भी है और बड़ी डिटेल में चलाया कि वो जो फैक्ट्री ओनर है जुल्फकार साहब, उनको कहा गया कि आप मरियम जो है वो आपके फैक्ट्री में रहेगी और उन्हीं के फैक्ट्री के मुलाजमीन जो हैं उनको आपने सारा जो है वो शामिल किया और उनको आप कह रहे हैं कि वो जो है वो कैंपेन में उनसे फैक्ट्री ओनर्स से कैंपेन कराई और कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी फैक्ट्री के ऊपर जो है वो छापा पड़ेगा। अब ये मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमने सारे इस तरह की जो शिकायत हैं वो इलेक्शन कमीशन में हमने जमा करवाई और हमने बताया कि किस तरह से लोगों को अरेस्ट किया गया है, किस तरह से मामला जो है उनको चलाया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये सारा कुछ नहीं होना था अगर आप हमजा शहबाज को इंसिस्ट ना करते कि ये चीफ मिनिस्टर होगा, और इसकी चीफ मिनिस्ट्री की वजह से ये सारे यहाँ पे धांधली हुई है। लेकिन बहरहाल कल इंशाल्लाह ये इलेक्शन होने जा रहा है। पंजाब की जो 20 नशिस्तें हैं, इस वक्त के जो हालात हैं, इंशाल्लाह पीटीआई इन तमाम जो इस इलेक्शन में इस वक्त कोई मुकाबला ही नहीं है। इस वक्त जो मुकाबला है वो पीटीआई का किसी पार्टी से कोई मुकाबला ही नहीं है। पीटीआई इस वक्त एक पॉपुलर वेव के ऊपर है और पॉपुलर वेव के ऊपर जो है वो पीटीआई इस वक्त इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन जो है वो भरपूर तरीके से जीतेगी, भरपूर तरीके से जो है वो उसमें कामयाब होगी। और ये जो धांधलियाँ इन्होंने की हैं, अभी भी मैं ये समझता हूँ आज खुसूसन लाहौर में ज़्यादा इतलात हैं, मुजफ्फरगढ़ में, डीजी खान में और बाकी जगहों के ऊपर जहाँ पे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जो इलेक्शन कैंपेन में एक्टिव हैं उनको जाली केसेस में अरेस्ट करना। इस तरह से इलेक्शन नहीं होते।
अगर हमजा साहब आपको इस तरह से मार्शल लॉ का वज़ीर आला बनने का शौक़ है, जिस तरह से आपके ताया अबू बने थे, तो फिर एक अलहदा बात है। लेकिन जमहूरियत में आपको इलेक्शन लड़के अक्सरियत शो करके आना पड़ता है, और इंशाअल्लाह ये इसका भरपूर मुकाबला तहरीक इंसाफ करेगी। और कल के इंतखाबात में आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ बड़ी भारी अक्सरियत के साथ जीतेगी। इस वक्त जो नंबर गेम है वो बड़ी क्लोज है। हमें तकरीबन 13 सीटें जो हैं वो चाहिए अपने आप को एक 186 सीटों के ऊपर ले जाने के लिए। उम्मीद मुझे ये है कि हम इंशाअल्लाह 16 सीटें जो हैं वो इसमें जीतेंगे। और इस वक्त जो तमाम सर्वेज हैं वो तहरीक इंसाफ की कामयाबी का बबांग दहल ऐलान कर रहे हैं। और इस इलेक्शन में मैं तहरीक इंसाफ के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ जो हमारे एजेंट्स हैं आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, आपने धांधलियों को रोकना है, और इंशाअल्लाह कल आपसे एक फतह के साथ मुलाकात होगी। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा इजाज़ चोई साहब से कि वो इसको आगे बात करें। नाजरीन, आप लोगों ने ये 2 वीडियो देख ली हैं, नज़ीर चौहान और उज़मा के, और अब आप लोगों के सामने एक दूसरी वीडियो चलाने जा रहा हूँ, जो आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि फैक्ट्री मालकान और इसको जो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे ये कैसे होता है और ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। ये आप लोग खुद सुन लें, खुद देख लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। अपडेट करें आपको कि मरियम नवाज के मुल्तान जलसे के लिए नून लीग ने फैक्ट्री मालिकान से मदद मांगी। फैक्ट्री मालिकान वर्कर्स को मरियम नवाज के मुल्तान जलसे में भेजें। नून लीग ने पैगाम पहुंचाया और धमकी दी कि वर्कर्स जलसे में ना पहुंचे तो फैक्ट्री मालिकान नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। मरियम नवाज के मुल्तान जलसे में आने वाली खातून ने भांडा फोड़ दिया। खातून ये बताती हैं कि हम तो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, लेकिन कंपनी इंतजामिया ने कहा कि आप नून लीग के जलसे में जाएं। उन्होंने बताया क्या, आप भी देखिए। हम तो भाई वोट नवाज उसको देंगे, इमरान खान को देंगे। हम इमरान खान को देंगे वोट। जबरदस्ती लेकर आए, जबरदस्ती लेकर आए ये लोग। कौन जबरदस्ती लेके आए? ये हमारी कंपनी वाले जबरदस्ती लेकर आए। कितने पैसे दे के आए? हमें 1 रुपया भी नहीं दिया, कोई भी पैसा नहीं दिया। क्या करने आई? अगर आप मरियम नवाज का जलसा और आप हम सिर्फ अपनी कंपनी की वजह से आए हैं। ठीक है, कंपनी कौन सी आपकी? जिस कंपनी की वजह से आए हैं। हम वोट देंगे तो सिर्फ इमरान खान को देंगे और किसी को नहीं देंगे। बस हम देखने आए, निकाल दे। कोई किसी को खाने का नहीं देता, हर कोई कमा कर खाता, कोई भी नहीं देता। खातून की गुफ्तगू आपने सुनी। नाजरीन, ये 20 हलकों का इलेक्शन पूरे पाकिस्तान की इस पे नज़र है और एक बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। एक का इस्तीफ़ा पहले से कबूल किया जा चुका है और एक रुकन पंजाब असम्बली PMLN से ताल्लुक़ था उसका, वो नाअहल हो गया। अब पंजाब असम्बली में नंबर गेम बड़ा दिलचस्प हो गया। जो पीपल्स पार्टी और PMLN के मेंबरान थे वो पहले थे 173, अब 170 रह गए हैं। जब ये 202 अरकान इससे निकाल लेंगे तो 168 रह जाएगी और इनके साथ पाँच आज़ाद अरकान मिलाकर एक राह हक पार्टी का 4 आज़ाद है, वो मिलाकर 173 हो जाएगा, जो कि इनको अभी टोटल 14 सीटें दरकार होगी और PTI को 13 सीटें जीतनी होगी। इमरान खान ने इस इलेक्शन को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हर छोटे बच्चे को भी पता चल गया है कि मुनहरिफ कौन हुए हैं और किसको वोट करना। इमरान खान ने इनको ऐसे थका दिया है कि उनके पसीने निकल आए और ये सारी चीज़ें एक तरफ और इनका हुकूमत बनाना एक तरफ। अब देख लीजिएगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट तक सारे सोच रहे होंगे कि यार हमने क्या गलती की है और ये क्यों हमने ये गलती की। ये जंग है पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत और इमरान खान का। कल देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचता है। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे
انشاءاللہ اسی ٹائم الیکشن سٹارٹ ہوگا، کیونکہ یہ لیٹ ٹائم ہے اور لیٹ ٹائم اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 20 حلقوں پر 22 کروڑ کی نظر ہے، ہر کوئی اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے، کس کی جیت ہوتی ہے، اور پنجاب کی لڑائی میدان تو کل سجنا ہے، تو جیتنے والا کون ہوگا یہ دیکھیے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر الیکشن صحیح طریقے سے ہو، آزادانہ ہو، اور اس میں کوئی پرابلم نہ بنے، کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہو، کوئی خون خرابہ نہ ہو، کسی جگہ یہ ایسے تکلیف نہ بن جائے جس پہ پچھتاوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرپشن کا بٹن ضرور دبائیں، لائک اور کمنٹس ضرور کریں، کیونکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے غلط کیا کیا اور صحیح کیا ہے۔ آپ لوگوں کے حق میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر لیا کریں، اور سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ ضرور یہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔